पिछले दिनों हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत किया था और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में कितने स्टेजेस होती हैं या स्टेप्स आर दैट आर फाउंड इन लाइफ साइकिल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज। तो वो एक तरह से प्रिपरेटरी इंट्रोडक्टरी नोट आपके पास जानकारी दी गई। इसके बाद एक्चुअल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ स्टेप्स होते हैं। अब चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो दैट हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन, फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबके पास एक ही मैकेनिज्म होता है। Although they have different method to reproduce or perform their sexual reproduction, but here the fundamental pattern or fundamental steps of the all type of organism is the similar. So they follow the same pattern or same method or same fundamental points for their reproduction. Then these events are the steps of sexual reproduction are divided into three types or three steps or three stages. First one is the pre-fertilization event. Then the events or activity occur before the fertilization. Then fertilization, that is the fusion of gamete, we have already known. In sexual reproduction, fusion of gamete takes place, and post-fertilization event, that is after fertilization, zygote is formed and it undergoes division to form multicellular embryo. This is the last process of sexual reproduction. Then these three events or steps are common in all type of organism. They may be multicellular or unicellular organism. Although they have different method, but all the organism follow the same steps or same pattern or same stages of the sexual reproduction. Then first step is the pre-fertilization event. The events found before the fertilization. It includes two steps or two events, that is gametogenesis and gamete transfer. These are two sub-steps or sub-stages of first stage pre-fertilization events. Then gametogenesis, we have already know about the gametogenesis, that is defined as the formation of gamete or haploid cells, haploid gamete from the parent is called gametogenesis. Then this gametogenesis or gamete formation takes place by different method, and the process produce different type of gametes. They may be similar. If these gametes are similar, then such type of gametes are called the homogamete or isogamete. Homogamete or isogamete term used for the gamete that are similar. Means male, there is no distinction between the male and female gamete. जब मेल और फीमेल दोनों गैमीट एक ही प्रकार के होते हैं, उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो होमोगैमीट है या आइसोगैमीट है। इन केस ऑफ एल्गी, क्लेमाइडोमोनास है, क्लाइडोफोरा है, इसके अंदर जो गैमीट बनते हैं वो बिल्कुल सिमिलर टाइप के बनते हैं। अब इसमें आप इजीली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन मेल गैमीट है, कौन फीमेल गैमीट है। देन सच टाइप ऑफ गैमीट दैट आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर आर कॉल्ड आइसोगैमीट, एंड इन अदर केस द गैमीट हैविंग डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, they may differ in
their size, shape, or presence of flagella, absence of flagella. Then such type of gamete are called heterogamy. हेट्रोगैमेट का मतलब हुआ डिसिमिलर गैमेट। Then one gamete is larger in size, other gamete is smaller in size. One gamete is flagellated or other is non-flagellated. One gamete is motile and other one is the non-motile or static. Such type of gametes are called heterogamy. In higher organism, like also in human being, the male gamete called sperm, and in case of plant it is called antherozoids, and female gamete is static and larger in size. This is called egg ओवर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों के अंदर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है। ये बहुत ही स्मॉलर साइज का है, इसके पास एक टेल है या फ्लैजिला कह लीजिए, मूव करता है जिससे ये, और ये नॉन मोटाइल है, स्टैटिक है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो ऐसे गैमेट्स को हम बोलते हैं हेट्रोगैमेट। देन आइसोगैमेट एंड हेट्रोगैमेट, टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी एंड फंजाई similar gametes are produced, then that is we cannot distinguish between the male and female gamete, जिसको हम अंतर नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं आइसोगैमेट। और जो डिफरेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं हेट्रोगैमेट। जैसे हायर ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन बीइंग में स्पर्म और एग है या ओवम है, उसी तरह से ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा में भी देखते हैं एंथ्रोजॉइड्स होते हैं और एग होता है। कुछ हायर एल्गी में भी एक होता है, एंथ्रोजॉइड्स होता है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। इस तरह के गैमेट्स को हम बोलते हैं कि ये हेट्रोगैमेट होते हैं। अब इसके बाद कौन गैमेट प्रोड्यूस करता है, इसको हम डिस्क्राइब करने के लिए सेक्सुअलिटी देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअलिटी क्या है। तो अगला स्टेप इसमें हम बताएं कि प्री फर्टिलाइजेशन में पहला गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अलग अलग इंडिविजुअल बनेंगे या सेम इंडिविजुअल में बनेंगे। तो उसके आधार पे हम क्या करते हैं कि सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। अब सेक्सुअलिटी में अलग अलग मेल फीमेल होंगे या एक ही में मेल फीमेल होगा, इसके लिए हम कुछ बायोलॉजिकल टर्म यूज करते हैं। पहला कहा गया, जैसे फंजाई के केस में होमोथाइलिक कहा जाता है, प्लांट के केस में मोनोइसियस कहा जाता है। It represents the bisexual condition. Bisexual condition means in case of plant, same flower bears male organ as well as the female organ. And in case of lower organism like fungi, one hypha represents the male and other the female. Then the same individual have both the sex organ, male and female. This condition is called bisexual or monoecious। जैसे अधिकतर फ्लावर होते हैं, जैसे मस्टर्ड का फ्लावर है, इसको आप देखेंगे तो उसमें आपका स्टेमेन में भी होगा और पिस्टिल भी होगा, दोनों पाए जाते हैं, तो उसको हम बाइसेक्सुअल कंडीशन कहते हैं। दूसरा होता है हेट्रोथाइटिक। एक हाइफा फंजाई का, एक माइसीलियम का एक पार्ट जो होगा वो मेल रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा फीमेल रिप्रेजेंट करेगा, अलग अलग होंगे, तो ऐसी कंडीशन को हम हेट्रोथाइलिक कहते हैं। और हायर अगर प्लांट्स को कंसीडर करें तो उसको डायोइसियस कहते हैं। डायोइसियस मीन्स मोनोसेक्सुअल। अब जैसे फ्लावर दो तरह के हो सकते हैं, एक फ्लावर ऐसा होगा जिसमें केवल मेल ऑर्गन होगा, एक फ्लावर ऐसा होगा जिसमें फीमेल ऑर्गन होगा। तो हम जानते हैं कि मेल ऑर्गन जो होता है उसका स्टेमिन होता है, स्टेमिन होगा तो स्टेमिनेट फ्लावर कहेंगे, केवल पिस्टिल होगी या फीमेल ऑर्गन होगा तो उसको पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे। तो दो तरह के फ्लावर होते हैं। अब इस केस में एक ये होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं हमारे हैं जो मोनोइसियस है, दोनों फ्लावर पाए जाते हैं, प्लांट एक ही है लेकिन एक ब्रांच पे फीमेल पाया जाता है, एक ब्रांच पे मेल पाया जाता है, उसको हम मोनोइसियस कंडीशन में लेते हैं। जैसे कुकुरबिट्स पौधे, ये जो आपके कोहड़ा, लौकी, नेनुआ, सरपतिया है, ये कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर होते हैं।
इसमें प्लांट तो एक ही होता है, लेकिन एक ब्रांच पे फीमेल फ्लावर है, दूसरी ब्रांच पे मेल फ्लावर है। तो जिसमें मेल होगा उसको स्टेमिनेट कहेंगे और दूसरे को पिस्टिलेट, यानी प्लांट एक ही है, तो उसको तो हम मोनोइसियस में ले लेते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें प्लांट ही सेपरेटली पाए जाते हैं, मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। जैसे इसका कॉमन एग्जाम्पल है आपका कैरिका पपाया, पपाया का प्लांट है। पपाया में मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग पाए जाते हैं। फीमेल प्लांट का फ्लावर जो होता है बड़ा होता है, उस पर फ्रूट बनता है, और एक और पपाया का प्लांट होता है जिसका फ्लावर बिल्कुल गुच्छे में छोटे छोटे पाए जाते हैं, तो वो मेल फ्लावर कहलाता है। तो दोनों प्लांट ही अलग अलग है। डेट पाम है, उसका भी फीमेल प्लांट अलग है, मेल प्लांट अलग है। तो ऐसे प्लांट्स को हम मोनोसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल और डायोसियस कहते हैं। इसी तरह से एनिमल के केस में भी डायोसियस कंडीशन पाई जाती है, मोनोइसियस कंडीशन पाई जाती है, लेकिन हम ये टर्म यहाँ यूज नहीं करते, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल टर्म यूज करते हैं। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है तो उसमें मेल फीमेल इंडिविजुअल डिफर करेंगे, दोनों सेपरेटली पाए जाते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग है या अदर हायर ऑर्गेनिज्म हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनके अंदर मेल इंडिविजुअल अलग होगा, फीमेल इंडिविजुअल अलग होगा, उसको हम बोलते हैं कि यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस उनके अंदर होता है। और बाइसेक्सुअल कंडीशन भी होता है, सेम ऑर्गेनिज्म की बॉडी होगी, उसके अंदर दोनों गोनाइड्स पाए जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों गोनाइड्स पाए जाते हैं, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल कंडीशन इन एनिमल किंगडम रिप्रेजेंटेड बाय टर्म हर्माफ्रोडाइट, लाइक अर्थवार्म, टेपवर्म। दोनों हम इसलिए अलग अलग लिखे, अर्थवार्म बाइसेक्सुअल है, इसके अंदर मेल आर्गन भी है, फीमेल आर्गन भी है, टेस्टिस भी है, ओवरी भी है, लेकिन इसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। मीन्स दे नीड अदर इंडिविजुअल फॉर फर्टिलाइजेशन, एक पार्टनर चाहिए इनको, इस तरह का इनका कुछ अरेंजमेंट होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और इधर टेपवर्म है, टेपवर्म के अंदर दोनों गोनाइड्स पाए जाते हैं और फर्टिलाइजेशन विद इन द बॉडी हो जाता है। तो यहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, ये भी हर्माफ्रोडाइट, ये भी हर्माफ्रोडाइट, लीच भी हर्माफ्रोडाइट, लेकिन लीच में, अर्थवार्म में, नेरीज में, इन सब में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। और टेपवर्म भी हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस तरह से आपके सेक्सुअलिटी हो गई इनके अंदर। अब अगला एक गैमीट जो होता है वो हैप्लॉइड नेचर का होता है, तो जब बनता है तो सेल डिवीजन होता है। तो कब होता है, कैसे होता है, अगला स्टेप हम आपको बता रहे हैं, सेल डिवीजन ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। इसी स्टेप में या इवेंट्स में अगला है सेल डिवीजन ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट बनते हैं तो सेल डिवीजन होता है। तो ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में कहाँ कहाँ डिवीजन होता है, तो एक तो मोस्टली ऑर्गेनिज्म आर डिप्लॉयड, जितने हायर ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉयड होते हैं, उनकी जर्म सेल भी डिप्लॉयड होती है, तो उसका मियासिस सेल डिवीजन होता है और हैप्लॉइड गैमीट होता है। गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर, जितने गैमीट कभी भी किसी ऑर्गेनिज्म बनेंगे तो हैप्लॉइड ही होंगे। तो ऑर्गेनिज्म अगर डिप्लॉयड है यानी क्रोमोसोम पेयर में पाए जाते हैं, तो हैप्लॉइड गैमीट बनाते समय उसके अंदर मियासिस सेल डिवीजन होगा, और मियासिस से जो सेल प्रोड्यूस होगी, डॉटर सेल बनेगी, वो हैप्लॉइड नेचर की होगी, वो गैमीट का काम करेगी। लेकिन हमने पिछले क्लास में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ा है ब्रायोफाइट में, एल्गी में, जिसमें प्लांट ही हैप्लॉइड होते हैं, तो क्या वहाँ भी मियासिस होता है? तो ऐसा नहीं है, वो तो पहले से हैप्लॉइड होते हैं और गैमीट उनके अंदर ही बनता है। ये एल्गी या ब्रायोफाइट में देखने को मिलेगा, ये हैप्लॉइड इंडिविजुअल होते हैं। तो हैप्लॉइड में जब गैमीट बनाना होता है तो यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस।
और इसके बाद गैमीट बनते हैं। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो उसको माइटोसिस से वो गैमीट बनाएगा। तो अब ये कहा जाए कि क्या अब इनके पास मियासिस होता ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिज्म क्या है? हैप्लॉइड है। जब फ्यूजन होगा, दो गैमीट फ्यूज करेंगे तो फिर से वो डिप्लॉइड हो जाएगा, यानी जाइगोट जो बनेगा वो डिप्लॉइड होगा। तो ऑर्गेनिज्म आपका हैप्लॉइड है, तो जाइगोट में मियासिस होता है और नई सेल्स जो बनती हैं वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, फिर उससे नया ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। तो इस केस में कहा जाता है ये जाइगोटिक मियासिस होती है। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमीट बनाने के लिए उसको बोलते हैं गैमेटिक मियासिस, और इसको बोलते हैं जाइगोटिक मियासिस। तो जाइगोट में मियासिस होगा और फिर क्या बनेगा? यहां मियासिस हो गया और हैप्लॉइड सेल बने, और इस हैप्लॉइड सेल से न्यू इंडिविजुअल डेवलप होंगे। तो इस तरह से दो प्रकार की सेल डिवीजन पाए जाते हैं। एक तो है डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म अगर है, जैसे पेयर्ड क्रोमोसोम, उसके अंदर मियाटिक सेल डिवीजन होगा और गैमीट हैप्लॉइड बनेंगे, क्योंकि गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म ही, उसकी ऑर्गेनिज्म की बॉडी ही हैप्लॉइड है, जैसे ब्रायोफाइटा और एल्गी में, तो उस कंडीशन में हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म माइटोसिस डिवीजन करता है और गैमीट बनते हैं। फिर गैमीट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूज करते हैं तो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। फिर इस जाइगोट से मियासिस सेल डिवीजन होता है, हैप्लॉइड सेल बनता है, और वो हैप्लॉइड सेल नया इंडिविजुअल डेवलप करता है जो उस हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के जैसा होता है। तो इस तरह से वहाँ गैमेटिक मियासिस हुआ, यहाँ पे जाइगोटिक मियासिस हुआ। इसके बाद अगला स्टेप इसका होता है, एक स्टेप और है गैमीट ट्रांसफर। गैमीट का ट्रांसफर कैसे होता है? दो स्टेप थे, गैमीट फॉर्मेशन था और दूसरा है गैमीट ट्रांसफर। गैमीट बन जाते हैं हैप्लॉइड गैमीट। तो इसके बाद ये मेल अलग ऑर्गन है, फीमेल अलग है, कुछ बहुत जो मोनोसियस होते हैं, सेम होगा फ्लावर तो उसके अंदर तो पहुंच जाएगा। लेकिन जहां पर मेल ऑर्गन एंथीरिडियम अलग हुआ और एग अलग है, तो उनको पहुंचने का एक साधन होना चाहिए। तो जो लोअर प्लांट्स है, जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट है, यहाँ की टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइटा भी रिक्वायर्ड सम मीडियम फॉर ट्रांसफर ऑफ गैमीट। तो इन तीनों के केस में वाटर एक्ट्स एज मीडियम फॉर गैमीट ट्रांसफर। गैमीट के ट्रांसफर के लिए वाटर एक मीडियम का काम करता है लोअर प्लांट्स में। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट हैं उनके अंदर एक मैकेनिज्म डेवलप होता है, चाहे वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो चाहे बाइसेक्सुअल फ्लावर हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेथड अपनाई जाती है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम मेल फ्लावर और एंथर टू फीमेल फ्लावर और स्टिग्मा ऑफ स्टिक इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट में स्वतः हो जाता है, लेकिन सबके अंदर ऐसा नहीं होता है। तो दूसरा क्लास होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ये किसी मीडियम से जाता है, वो वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, और एनिमल्स भी हो सकते हैं। एनिमल्स में स्पेशली इंसेक्ट। तो इस तरह से मेल गैमीट को फीमेल ऑर्गन तक या एग तक पहुंचाने का काम इस तरह से, चाहे किसी वाटर मीडियम से हो, इंसेक्ट से हो,
हायर प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है, इनके अंदर वाटर मीडियम ही काम करता है। कारण ये होता है कि एक तो गैमीट स्टैटिक होता है, स्टेशनरी होता है, एक गैमीट मोटाई होता है इन लोअर प्लांट्स में, ब्रायोफाइटा मिल्की में, तो वो वाटर के मीडियम से चले जाते हैं। सो दे रिक्वायर्ड वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। पानी नहीं रहेगा तो इनका रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये भी देखा जाता है कि जहाँ पानी है वहाँ पे इनका सफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है, पानी नहीं है तो ये नहीं वहाँ पे उगते हैं। तो इस तरह से गैमीट ट्रांसफर होता है। एनिमल के केस में, हायर एनिमल्स में देखें तो दे हैव सम स्पेशल मैकेनिज्म टू ट्रांसफर देयर गैमीट। ह्यूमन बीइंग है या अदर एनिमल्स है, अपने स्पर्म को फीमेल तक पहुंचाने के लिए उनका अलग तरीका है, उनका फिजिकल पैटर्न है, फिजिकल कॉन्टैक्ट है, जिससे वो अपने गैमीट को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक पहुंचा देते हैं। फिर आगे का प्रोसेस होता है। तो इस तरह से इतना काम प्री फर्टिलाइजेशन में होता है। अब इसके बाद दोनों गैमीट जब एक साथ आ जाएंगे एक जगह पे तो दोनों का फ्यूजन होगा, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में अगले वीडियो में देंगे आपको। इतना काम ठीक से पढ़ लीजिएगा और इसका नोट्स आपको मिलेगा तो उसको आप लिख लीजिएगा। धन्यवाद।